مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام سب کو سلام. میرے عزیزو، آج کیا ہی خوبصورت دن ہے کہ خداوند نے ہمیں آج موقع دیا کہ ہم اس کے گھر میں آئیں، اس کی عبادت کریں اور اپنی تمام جو دنیاوی پریشانیاں ہیں یا کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، کوئی بیمار ہے، ہم اس پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ لاد دیتے ہیں کہ وہ ہمیں تمام مشکلوں سے، تمام ضرورتوں سے، تمام تکلیفوں سے ہمیں وہ رہائی بخشتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. میرے عزیزو، آئیے ہم آج کی عبادت کو شروع کرتے ہیں. اپنے آپ کو تیار کریں خداوند کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے تمام جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی باتیں ہیں اس کو ترک کر دیں. ابھی صرف ہم مسیح کو یاد کریں گے، ہم اس کی عبادت کریں گے تاکہ وہ تمام جو ہماری مشکلیں، پریشانیاں ہوں، اس کا جو وہ سبب ہے وہ مسیح یسوع کے پاس ہے. آئیے ہم دعا کریں. اور میں خاص طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی جو عبادت ہے اس میں ہم خاص طور پہ دعا کریں گے. میرے پاس 3 ریکویسٹ آئی ہیں پاکستان سے. ایک ہے مشل پطرس اور پون پطرس. یہ پاسٹر صاحب ہیں، پاسٹر پطرس جو لیٹس لرن منسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کی بیٹیوں کے ایگزام ہیں. ہم خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں گے خداوند ان کو کامیابی دے. اور تیسری ہمارے پاس درخواست آئی ہے سمیہ نام ہے، وہ راولپنڈی میں رہتی ہیں اور وہ ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پہ ہیں. ہم ان کے لیے خاص دعا کریں گے کہ خداوند ان کو شفا دے. وہ ہماری، کیونکہ ہم ہزاروں میل دور ہے، لیکن ہمارا خداوند جو ہے، جس کو ہم مانتے ہیں، جو ہمارا خداوند یسوع زندہ خدا ہے، وہ مائلز کا یا کلومیٹر کا وہ سفر کا کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم دعا کہیں پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے. اور ہمارے پاس ایسی دعائیاں ہیں جو مختلف دنیا کے ملکوں سے آتی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اور خداوند ان کو ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، بیماریوں، ان سے رہائی بخشتا ہے. یہ خداوند کا کرم ہے. ہم آج خاص دعا کریں گے اس بیٹی کے لیے جو اس ٹائم وینٹیلیٹر پہ ہیں، تو خداوند ان کو شفا دیں. اور پون اور مشن کے لیے خاص طور پہ ہم دعا بھائی دیو کے لیے ہم لوگ دیو کے لیے خاص طور پہ دعا کریں گے. سسٹر نشابہ کے بیٹے، ان کا بازو فریکچر ہو گیا تھا اور خداوند نے ان کو کافی یعنی ریکوری ملی ہے اس کو، اور ان کا جو پلسٹر تھا وہ بھی اتر گیا اور بڑا کرم ہے. ہم اس کی آگے جو اس کی ریکوری، اس کی خاص دعا کریں گے خداوند اس کی بازو کو اسی طرح سے سلامت کرے اور وہ اسی طرح پھر اپنے جو زندگی کے کام ہے اس میں دوبارہ سے مشغول رہے. اور جی سسٹر، میری بھانجی ہے لنڈن میں، شیرن اس کا نام ہے. وہ سک ہے کافی اور اس کو گال سٹون ہے اور اس کا مطلب 1-2 پرابلم ہے. وہ کافی بیمار ہے، لنڈن میں ہے. اوکے، یہ ہم سب تمام دعائیں جو ہے نا وہ ہم خداوند کی حضور میں رکھیں گے. ہم خاص طور پہ آج کی عبادت کو بھی رکھیں گے. خداوند شروع سے لے کے آخر تک ہمارے ساتھ ہو. اور میں بتانا چاہتا ہوں آج ہمارا مہینے کا پہلا اتوار جو ہوتا ہے اس میں ہم پاک شرکت ہولی کمیونین لیتے ہیں. تو آج یہ پاک سیکرمنٹ بھی ہم آبزرو کریں گے. میں خاص طور پہ درخواست کروں گا بردر عابد سے کہ وہ آئیں اور آج کی عبادت کو اور ان تمام جو دعائیں جو درخواستیں کی گئی ہیں ان کے لیے دعا کریں گے. بزرگ آسمانی باپ کا نعمتی خدا بے ربر کے خالق اور مالک، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آج دوپہر کے لیے. خدا ہم آپ کے نام کو مبارک کرتے ہیں. بزرگ آسمانی باپ، آپ نے فرمایا سب محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. خدا یسوع جی، ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنی سوچوں، ہم اپنی فکروں کو خدا پاک خدا ان تمام پریئر ریکویسٹ کو آپ کے پاک مذہب پر لے آتے ہیں. اور خدا یسوع ناصری، آرام آپ کے پاس ہے، شفا آپ کے پاس ہے. بزرگ آسمانی باپ، ہم ان بیٹیوں کے لیے جن کے ایگزام ہیں، ان کے نام آپ کی پاک حضوری میں بلائے گئے ہیں، ہم ان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ آپ انہیں بڑی کامیابی بخشیں. اور خدا پاک ان کی کامیابی آپ مسیح یسوع کے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث.
बुजुर्ग आसमानी बाप, हम रावलपिंडी में उस बहन को आपके पास मुझको पर लाते हैं जो हॉस्पिटल में रहने के लिए सफर है। खुदावंद यीशु जी, आप शिफा के मामा हैं बाप, आपके नाम में शिफा पाई जाती है, आपके कलाम में। और बेशक खुदावंद यीशु जी, आप जिंदा हैं और आप दुआओं को सुनते हैं। हमारी आज से पहले की दुआ आपके हुजूर में कबूल हो। और खुदावंद पाक, खुदा वो बेटी वो बहन खुदावंद आप खुदावंद पाक खुदा उसे याद करें और वो खुदावंद आप मसीह यीशु में सलामती पाए, सेहत याबी पाए और अपने खानदान में बहाल। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम बहन शहरन को आपके पास मस्तक पर लाते हैं, ईमान रखते हैं कि आप हमारे शाफी हैं। खुदावंद यीशु जी, जो हमारे सारे गुनाहों को मुआफ़ करते हैं, हमें सारी बदी से छुड़ाते हैं, हमारे सारे गुनाहों को मुआफ़ करते हैं। खुदावंद पाक खुदा हमें सारे रोगों से शिफा देते हैं। आप खुदा हम मिन्नत करते हैं कि अपने रहम अपने फजल से बहन शहरन को भी आप शिफा दें। खुदावंद उनके बदन की सारी अंदरूनी बैरूनी वबा बला बीमारी से आप वाकिफ़ हैं और खुदावंद अपने रहम अपने फजल से उस बहन को शिफा दें। आज की इबादत को खुदावंद हम आपके पाक मज़बा पर लाते हैं, इस बड़े फजल के लिए जो आपने हम पर किया कि हम खुदावंद पाक का इस बड़ी दलेरी के साथ आप मसीह यीशु के पाक मज़बा पर आते हैं। और खुदावंद पाक खुदा इस बड़ी बख्शिश के लिए जो आपने हमें बख्शी कि आपने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा और हमें ये हक बख्शा कि हम आपको अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। ऐ बाप, आज की इबादत, ये सुखनी कुर्बानी आप मसीह यीशु के हुजूर में कबूल हो। खुदावंद पाक खुदा इस सारी फेलोशिप पर आपकी बरकत हो, प्रस्तिश और आपका मसा मांगते हैं। खुदावंद पाक खुदा, आपके खादम जो आज की आवाज़ हैं, बुजुर्ग आसमानी बाप आपके पाक रूह की गायल इस्तेमाल और आज की इबादत के वसीला से सारा जलाल आप मसीह यीशु के नाम को, यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारा सबसे जो कीमती एहसासा है वो कोई गाड़ी, घर, दौलत, जेवर ये नहीं है मेरे अजीजों। ये दुनियावी चीज़ें हैं, ये यहीं पे हमारे इस्तेमाल के लिए हैं, ये हमें खुदावंद बरकत देता है। लेकिन सबसे जो कीमती आपके पास चीज़ है वो आपका ईमान है। आपका ईमान जो है वो सबसे कीमती है। आइए हम अपने ईमान का इकरार करेंगे और जो रसूलों का हमारे पास अकीदा हमें दिया गया है, आइए हम तमाम खड़े होकर उसको अपने अकीदे को दोबारा से हम रिवाइज करेंगे। अगर आप देख सकते हैं ये जो पर्चा है इसकी बैक साइड पे भी लिखा हुआ है, वैसे तो हमें ज़बानी आना चाहिए क्योंकि हमारा अकीदा। आइए हम मिलके रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं। मैं ईमान रखता हूँ खुदा खालिक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, आलमे रबा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का आदम की बात की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की इबादत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जीवती और हमेशा की जिंदगी पर, आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। अभी वक्त हुआ है कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से 2 तलावतें हम सुनेंगे। पहली उर्दू में हमारे लिए सिस्टर शीरी करेंगी और दूसरी बेटी जैसी डेविड। कुरान के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से पहली तलावत गॉस्पेल ऑफ जॉन यूहन्ना रसूल की अंजील उसका चैप्टर 12 और उसकी 32 वर्स। और मैं अगर ज़मीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। उसने इस बात से इशारा किया था कि मैं किस मौत से बनने को हूँ। सेकंड तलावत
फिलिपियों का खत उसका सेकंड चैप्टर उसकी पहली 5 वर्सेस। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तो फर्क और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बड़ी बरकत है। The Gospel of John, chapter 12, verse 32. And if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. The second book we're reading from is Philippians, chapter 2, verse 1 through 5. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, that each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Let his mind be in you, which is also in Christ Jesus. Amen. आइए वक्त हुआ है कि हम अपनी जो कवायद के साथ खुदावंद की मनसराई करेंगे, उसकी तमजीद करेंगे। आइए मिल के हम गीत गाते हैं। ऐसा है कि हम अगर खड़े होके गीत गाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मसीह को भी और हमें भी और हमारी कवायद को भी। आइए मिल के जो गा सकते हैं प्लीज आगे आबिद भाई अगर आप कवायद को ज्वाइन कर लें। थैंक यू। Book number 145, page 105. इसके साथ ही हम ज़बूर नंबर गाएंगे 148. Oh,
42 اور پیج ہے 406 342 پیج نمبر 403 Thank you.
Amen. Hallelujah. Thank you. Thank you. Wow. Amazing. What a beautiful song. जिसने भी ये गीत लिखा है और इसकी जो तर्ज बनाई है, खुदावन उनको बहुत बरकत दे. It's amazing. और आज की क्वायर को बेटियों को Yes. आमीन आमीन. New Covenant All Church the के choir. musicians, especially this one, ये बेटी yes the one who was doing the tabla. Play the drums, Yeah. बिल्कुल बिल्कुल. ये एक ऐसा गीत है, मैंने जब से सुना है तब से मेरा पूरा बदन रूह इसमें झूमता है. Yes. एक वजह जो है मैं बताना चाहता हूँ अपनी बात में बताया. And it does happen. और इसके जो अल्फाज हैं, जिस तरह इसको लिखा गया है, हालेलुया. मैं खुदावंद के घर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, इसलिए कि खुदावंद जो है वो खुश होता है जब उसके लोग मिलकर उसकी इबादत करते हैं. आमीन. बहुत तो एग्री करता है कि खुदावंद खुश होता है. Amen. सब करते हैं. Amen. आमीन. और जैसा कि अभी भाई ने कहा कि ईमान की दौलत जो है ये सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे पास, और उसी गिफ्ट की वजह से, उस दौलत की वजह से, उस मोटिवेशन की वजह से आज आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ. हम सब मिलकर खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे. और इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ कि मैं आज की ये जो इबादत है, ये जो सबक है खुसूसन, इसके लिए दुआ करो. तो आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें कि वो हमें पाक रूह की जो समझ है वो बख्शे, ताकि जब हम उसके कलाम को खोलते हैं, मिलकर इसमें से सीखते हैं, तो ये आज का सबक हमारी जिंदगियों में बहुत ज्यादा फल का बाइस बने. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा है. और आए खुदावंद हम यहाँ पर तेरे पहले से तयशुदा वक्त और घड़ी के मुताबिक यहाँ पर हैं. ये तेरे कैलेंडर में पहले से था कि खुदावंद आज के दिन हम इस जगह तेरी इबादत करें. आए खुदावंद हम अपने इरादे या अपनी सोच से नहीं आए, क्योंकि खुदावंद हम ऐसा कर ही नहीं सकते जब तक तू हमें ना चुने और तौफीक ना बख्शे. इसलिए तेरा शुक्र करते इस चुनाव के लिए, और खास कर खुदा आसमान से पहले से जो इबादत जारी है उसमें हिस्सा लेने का जो ऑनर तूने हमें बख्शा, इसके लिए तेरा खुदा हम शुक्र करते हैं. हम उस इबादत में हिस्सा लेते हैं जो पहले से जारी है. इसलिए खुदा अब तेरे आगे मिन्नत करते हैं, जब हम मिलकर तेरे कलाम को खोलते हैं और सीखते हैं, तो तू खुदा हमारी मदद करना. ऐ पाक रूह हमारी रहनुमाई कर, हमें हिदायत फरमा, और जो अल्फाज जो बातें की जाए वो तेरे कलाम में से, ताकि खुदावंद तेरा कलाम जो है आज हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा असर है, और इस कलाम को सुनने वाले नजदीक और दूर के सब ईमानदार बरकत पाए. यीशु के नाम में Amen. आमीन. यहाँ पर मेरे ख्याल में हाँ बिल्कुल टाइटल लिखा है स्पिरिचुअल मैग्नेटिक फील्ड. बड़ा अजीब सा टाइटल है, राइट? स्ट्रेंज सा है. रूहानी मकनातीसी इजहार आपका. थोड़ी देर के लिए हम इस पर बात करेंगे. बचपन में किस किस को मकनातीस से बड़ा अजीब सा लगाव था, अमेज हो जाते थे? तकरीबन सभी. जब हम बच्चे थे तो बड़े बड़े हैरान होते थे, ये क्या है जो एक लोहे का टुकड़ा है दूसरे लोहे की बनी हुई जो चीजें हैं उनको अपनी तरफ खींचता है. सब यही सीखा, हम अमेज होते थे. मैं भी बचपन में मकनातीस जो है उसके बारे में बड़ा हैरान होता था कि किस तरह ये जो टुकड़ा है लोहे का पीस जो है ये दूसरे जो लोहे की धात की अशिया उनकी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है. बहुत हैरान होते थे. और जब आप बचपन में होते हैं तो आप बड़े अजीब अजीब किस्म के एक्सपेरिमेंट भी करते हैं. तो हमारा भी 3-4 लड़कों का ग्रुप था. लाहौर में पाकिस्तान में एक जगह है मियां मीर, आपको पता नहीं पता है उसका नेम, कुछ को शायद पता होगा. तो वहां रेलवे की जो लाइन है वो गुजरती थी, और
ہم کسی وقت وہاں رہتے تھے نزدیک. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جو ہمارا جو 3-4 لڑکوں کا گروپ ہوتا اس میں ایک جو ہم سے ذرا بڑا تھا وہ کہتا کہ مقناطیس جو بنتا ہے اس کو جب ریل گزرتی ہے تو ریل کی پٹری پر اس کو رگڑتے ہیں لوہے کو جس سے مقناطیس بنتا ہے. اب سب اس پہ ایکسپیریمنٹ کرنا شروع ہو گئے. تو ہم نے کئی دفعہ کوشش کی, مقناطیس تو نہیں بنا لیکن کوشش جو ہے وہ جاری رہی. اور ایک دفعہ کا ذکر ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے شیئر کروں کہ بچپن میں ہم کس طرح اس میگنیٹ سے امیز ہوتے تھے, کہ حیران ہوتے تھے کہ سمر کی گرمیوں کی چھٹیاں تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بہت پرانے وقتوں کی بات کر رہا ہوں, گرمیوں میں ہمارے گھر میں کوئی اے سی نہیں ہوتا تھا اور شاید پنکھا بھی نہیں تھا اس وقت آنیسٹلی, تو ہاتھ کے وہ ہوتے تھے پنکھے. تو گرمیوں میں ویسے بھی دوپہر کو نیند بہت آتی ہے اور ماں باپ بھی کہتے ہیں بچوں کو کوئی سو جو باہر بہت دھوپ ہے باہر نہیں نکلنا. تو کسی طرح میں نکلا کیونکہ مجھے ریل کی آواز آئی تو میں نے کہا آج دوسرے تو نہیں, آج میں مقناطیس ضرور بناؤں گا. میں پھر سارا لگے ذرا تھوڑی نا شو بھی مارا گے. تو میں بھی باہر نکلا اور میں نے جا کے وہ جو لوہے کا ٹکڑا تھا اس کو کافی دیر اس لائن پہ میں نے رب کیا اور مقناطیس تو نہیں بنا, لیکن میری جو درگت بنی کیونکہ میرے والد صاحب انتظار کر رہے تھے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اور اس کے بعد میں نے وہ تجربہ کرنا چھوڑ دیا. بچپن میں اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. اور یہ ایک جو آج تک مجھے یاد ہے, میں جب ابھی چرچ میں تھے تو میں بچوں کو بتا رہا تھا یہ بچپن کی باتیں کہ کس طرح جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو کوشش کرتے ہیں کہ حل کرنے کی کوشش کریں. اور جو یہ مقناطیس ہے جو میگنیٹ ہے میرے دوستو, یہ اس کے اندر ایک قوت ہے, اس کے اندر ایک پاور ہے. الیکٹرانس یا الیکٹرک جو کرنٹ ہے وہ دھاتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے, لوہے کی, ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹکڑا ہے لوہے کا یہ اپنی چیز کو اپنی طرف, لوہے کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اور اس دن میرے ابو کا جو بوٹ تھا اس نے مجھے بہت میرے بدن کی طرف کھینچا. مقناطیس جو ہے بالکل جیسے مقناطیس ہے, جیسے میگنیٹ ہے, اسی طرح میرے عزیزوں ہم سب نے جو ابھی بڑی کلاسوں میں یا جو پڑھ چکے ہیں ہمیں پتا ہے کہ نیوٹن کی تھیوری کے بارے ہم نے گریوٹی کی ہم نے پڑھا ہے. تو زمین کے اندر زمین کا جو شکل ہے یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. جب آپ اوپر سے چھلانگ لگائیں یا آپ جمپ لگائیں تو آپ واپس ہی آئیں گے اس سیب کی کہانی کی طرح جہاں سے اسٹارٹ ہوا, یا اس نے اس کے بارے میں اور زیادہ ریسرچ کی اور بات کی. لیکن جو سائنسدان ہے, جو راکٹ جب زمین کے حساب سے نکلتے ہیں ایک سرٹن سپیڈ پر جانا پڑتا ہے, پھر وہ اس جو سرکل ہے یا کشش شکل سے باہر نکل آتے ہیں. اور پھر زمین کی جو یہ جو گریوٹی ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا, وہ اسپیس میں ہوتے ہیں. لیکن دوبارہ اسی میں واپس آنے کے لیے ان کو دوبارہ زمین کا وہ جو لائن ہے اس کو کراس کر کے واپس زمین پر آئیں گے. اور آج آپ نے دیکھا ہے یہ ایک بچوں کے سامنے بھی ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب اوپر کو جاتی ہے تو ایک سرٹن ایریا ہے جس کو وہ کراس کرتی ہے تو پھر زمین کی جو پاور ہے یا گریوٹی کا جو سور ہے یا جو فورس ہے اس کا اثر نہیں ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے ہم آج جو روحانی یا اسپرچل میگنیٹک فیلڈ ہے اس پر بات کریں گے, اور کہ کس طرح جس طرح مقناطیس جو ہے چیزوں کو کھینچتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سا ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کرتا ہوں. میرے ہاتھ میں یہ پلیٹ ہے اور اس کے اندر یہ ملچ ہے یا بلیک ملچ آپ کہہ لیں کہ جو کہ کیل اس میں مکس ہے, اور یہاں سے آپ ریت اور مٹی بھی کہہ سکتے ہیں, رائٹ. اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مکس اپ ہے سب کچھ, لیکن جب یہ میگنیٹ جو ہے نہیں ہو گیا, یہ میرے ہاتھ میں میگنیٹ ہے. تو جب یہ مٹی یا ریت جسے آپ کہہ سکتے ہیں, اس میں یہ جو فورس ہے اس کے اندر, وہ جو چیز اس کو رسپانس کرتی ہے اس کو یہ اپنی طرف کھینچے گا. یہ آپ نے دیکھا
जहां जहां भी मैं इसको लगाता हूं, जहां चाहे ये नेल्स हैं वो इसके साथ चिपक गए, क्योंकि इसकी जो फोर्स है इसके अंदर खींचने की, उसको ये जो कील है ये उसी धात के हैं, इन्होंने इसे रिस्पॉन्स किया है। आपने देखा कि ये जो मल्च या रेत या मट्टी है ये बिल्कुल वही की वही रही है, इसने इसे रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन इस मैग्नेट के अंदर जो फोर्स है उसको ये जो धात है इन्होंने उसको रिस्पॉन्स दिया और ये इसके साथ ये एक फोर्स है जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है, और मैग्नेट जो है वो लोहे की धात की जो बनी हुई चीजों ने अपनी तरफ खींचता है। आज हम थोड़ी देर के लिए कलाम मुकद्दस में से मैं मरकज की अंजील की तरफ जाऊंगा, और इसके बाद फिर जो हमारी मरकजी आयत है जिसको हमने पढ़ा है यूहन्ना की इंजील के 12वें बाब की 32वीं आयत थी, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। इसकी तरफ हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर इस पर बात करें मरकज की इंजील में से, और फिर हम ये जो हमारी मरकजी आयत है इसकी तरफ चलें। तो क्या हमने अभी देखा है? हमने ये देखा है ये एक्सपेरिमेंट करके कि किस तरह मैग्नेट के अंदर, मगनातीस के अंदर जो पावर और फोर्स है उसने धात की बनी हुई है, लोहे की जो धात है या लोहे की बनी हुई चीजें यहां पर कील है उनको अपनी तरफ खींचा है और वो उसके साथ चिपक गए। खुदावन यीशु मसीह के बारे में चारों अनाजील में मेरे अजीजों बहुत कुछ लिखा हुआ है, और जब सुसर मरकज की इंजील में, और मैं रेफरेंस शायद आपको कोट करूंगा लेकिन हम जो आयत है वो तो नहीं पढ़ेंगे। जब हम मरकज की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, उसके मौजों के बारे में, उसका जो 3 साल 3.5 साल का जो उसका जो मिशन है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें एक बात जो हमारे सामने आती है कि लोग एक हजूम था जो यीशु को फॉलो करता, ठीक है, उसके पीछे चलते। यीशु में एक ऐसी फोर्स है, उसकी बातें, उसके मौजे, उसकी गुफ्तगू, उसकी शख्सियत के लोग उसकी तरफ खींचे आते हैं। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि फ्लो के साथ चला जाए। लिहाजा बच्चों, द टीनेजर्स, यू ऑल यूज सेल फोन, हम सब सेल फोन यूज करते हैं, बड़े भी, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि मैं उनकी जो लिंगो है, उनकी जो जुबान है, इडियम, स्लैंग्स, उनको यूज करूं। आपके सेल फोन पे एक बटन होता है जिसको कहता है फॉलो। आज बहुत सारे लोग जो हैं एक्टर्स को फॉलो करते हैं, प्लेयर्स को फॉलो करते हैं, सिंगर्स को फॉलो करते हैं, पैस्टर्स को फॉलो करते हैं। क्यों? बिकॉज दे लाइक दैट पर्सन। वो उसका ताल्लुक जिस भी शोबे जिंदगी से है, आप उसको पसंद करते हैं और आप बटन दबाते हैं फॉलो, और फिर जो भी एक्टिविटी होती है आप अपडेट हो जाते हैं। आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता। लेकिन मेरे अजीजों, यहूदिया और उसके गिर्द वहां के लोगों ने जब फॉलो का बटन दबाया तो उनको लिटरली घरों को छोड़कर जाना पड़ा। वो यीशु को फॉलो करते थे, अपना घर बार छोड़कर उसको फॉलो करते थे, और वो यीशु की बातें जो हैं उनको सुनते थे, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी कुव्वत है, उसके अंदर ऐसी फोर्स है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। और आज एक सर्वे के मुताबिक जो कि 2010 में हुआ, 2.2 बिलियन क्रिश्चियन है। ये वो लोग हैं जो यीशु को फॉलो करते हैं आज इतने हजारों साल बाद भी। उसमें एक ऐसी फोर्स, ताकत और कुव्वत है जो लोगों को अपने पास खींचती और जिंदगियां जो है बदलती हैं। आज भी उसी तरह जिंदगियां बदलती हैं जिस तरह यीशु जब जमीन पर था और लोगों की जिंदगियां बदलती। वो जो फोर्स है, वो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसमें, वो स्पिरिचुअल मैग्नेटिक फोर्स की मैं बात कर रहा हूं। जो ईमान है लोगों का, वो उसकी वजह से उसकी तरफ खींचे जाते हैं, क्योंकि वो ईमान का मंबा है। वहीं से सारा ईमान और फेथ जो है वो साबित होता है मेरे अजीजों। और आपने देखा कि किस तरह ये जो कील है इन्होंने रिस्पॉन्स किया। जब लोगों ने यीशु को रिस्पॉन्स किया तो उन्होंने उसको फॉलो किया। हम कलाम मुकद्दस में जब मरकज की इंजील में
जाते हैं तो हमें एक वाक्य मिलता है जब यीशु ने एक शख्स में से बदरू निकाली, और लिखा है कि बदरू जब उसने निकाली तो लोग जो थे वो ये बातें दूसरों के साथ शेयर करते थे। अब हम आते हैं दूसरे बटन पर। जब आप कोई चीज देखते हैं, आपको पसंद आती है, तो आप क्या करते हैं? यू क्लिक शेयर एंड देन यू शेयर विद अदर्स। ये लोग जो थे इस तरह शेयर करते थे, दूसरों को बताते थे कि यीशु क्या कर रहा है, और फिर क्या होता है, उसके फॉलोअर्स में और इजाफा होता जा रहा है, और लोग उसके पास आते हैं और उसको फॉलो करते हैं। उसकी जो शोहरत है वो गिरदुनवा में फैल गई, और एक बड़ा हजूम था जो उसके पीछे चलता था। मेरे सीनियर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं उन्हीं दिनों में क्या होता है। मरकज की इंजील में हमें एक और वाकया मिलता है। 4 दोस्त हैं, उनका 5वां दोस्त बीमार है, उन्होंने उसको यीशु के पास लेके आना है, और कौन सी ऐसी चीज है, फोर्स है जो उन्हें मजबूर करती है कि वो यीशु की तरफ खींचे जाते हैं। उनका ये ईमान था कि यीशु जो है उसको उनके दोस्त को शिफा देगा, और जो 4 दोस्त हैं उस 5वें दोस्त को जो बीमार है अब यीशु के सामने लेकर आना चाहते हैं, और बड़े जोश से वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है, वो जो घर है उसके चारों तरफ एक हजूम है, दरवाजे जो है बंद हैं, लोग खड़े आगे, वो घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। घर में अगर कोई खिड़की है तो वहां भी लोग बैठे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं, लेकिन वो जो फोर्स है अंदर उसको खींच रही है। और मेरे अजीजों को क्या करते हैं, वो छत खोलते हैं, उन्हें ये भी फिक्र नहीं कि घर के मालिक क्या कहेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को उन्होंने डैमेज कर दिया है। लेकिन वो जो फोर्स है, वो जो यीशु की कुव्वत और ताकत है जो इंसानों को अपनी तरफ खींचती है, वो दरवाजा छत जो है उसको खोलकर अपने दोस्त को उसके सामने पेश करते हैं। और फिर क्या होता है, फिर यीशु उसको शिफा देता है। जब भी आप उस फोर्स को रिस्पॉन्स करेंगे उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे होंगे। हालेलुया, यस। याद रखें कि शैतान के पास भी एक फोर्स है, बहुत सारे लोग उसको भी रिस्पॉन्स देते हैं, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम एक ऐसे वक्त पे रह रहे हैं जहां कभी कभी डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि ये खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम किस फोर्स को रिस्पॉन्स करते हैं। ये जो कील है ये सिर्फ मैग्नेट को रिस्पॉन्स करते हैं। क्या मैं और आप सिर्फ यीशु को रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं? वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। और फिर मरकज हमें एक और जो बात है वो बताता है, और मैं यहाँ उसको जरा पढ़ना चाहता हूँ जल्दी से, फिर उस पर बात करते हैं। मरकज की इंजील उसके 5वें बाब की 25वीं आयत आप देख सकते हैं। वहां पर जिक्र है एक औरत का जिसका खून जारी था 12 बरस से, और लिखा है कि उसने बड़ा जो इलाज है वो करवाया, वो डॉक्टरों के पास गई, हकीमों के पास गई, और उसने बहुत कोशिश की कि वो शिफा पाए, लेकिन मेरे अजीजों उसको शिफा नहीं मिलती। और आखिर में हम इस कहानी में पढ़ते हैं कि वो बड़ी परेशान है। मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस औरत के शूज में रखना चाहता हूं और उस सारी तस्वीर को आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। मेरे अजीजों, वो जो औरत है वो बड़ी परेशान है, डॉक्टरों को पैसे दिए हैं, हकीमों के पास गई हूं, जो मेरे पास सरमाया था वो मैंने लगा दिया है, मुझे कोई आराम नहीं मिला। जो शरीयत के आलम और फाजल हैं, उन्होंने जो शरीयत की बातें हैं वो मुझे बताई हैं, समाज की जो रसूम है वो है, और मैं एक ऐसी औरत हूं जो नापाक हूं, मैं किसी के साथ ताल्लुक नहीं रख सकती, और अगर मैं किसी के पास जाती हूं तो वो भी नापाक हो जाता है। शरीयत के तहत मैं अब हैकल में जाने के काबिल भी नहीं हूं, मैं परेशान हूं कि क्या करूं। लेकिन मैंने सुना है कि यीशु जो है वो शिफा देता है, मैं इस हजूम में हूं, मेरा क्या बनेगा अगर कोई मुझे पहचान लेता है? वो मुझे संसार करेंगे क्योंकि मैंने जानबूझकर दूसरों को नापाक करने की कोशिश की है। मैं अपना सर जो है उसको अपनी चद्दर के साथ ढांप कर खामोशी के साथ यीशु के पास जाती हूं, लेकिन अगर मैं यीशु के पास जाती हूं तो शरीयत के तहत मैं उसको भी नापाक करती हूं, क्योंकि उसको यीशु के बारे में 100% अभी पता नहीं, लेकिन वो ये उसके दिल के अंदर थी बात। मेरे चीजों कि अब मैं क्या करूं? मैं खामोशी के साथ जाके उसकी पोशाक को छू लूंगी और मैं शिफा पाऊंगी। उसके दिल में ये बातें क्यों थी? क्योंकि लोगों ने उसके साथ शेयर किया था कि यीशु किस तरह शिफा देता है,
यीशु किस तरह रहाई देता है, यीशु ने किस तरह अंधों को आंखें दी हैं, लंगड़ों को उसने चलता किया है, उसने मुर्दों को जिंदा किया है। आज यीशु तूने मुझे शिफा देनी है, ऐ यीशु आज तूने मुझे मेरी बीमारी से शिफा देनी है। मैं जैसा भी होगा मैं यीशु के कदमों में जाऊंगी। एक फोर्स है जो उसको खींच कर यीशु की तरफ लेके जा रही है। उसने यीशु को रिस्पॉन्स किया है, लोगों ने उसके साथ शेयर किया है और वो यीशु को फॉलो करती है। एक हजूम में से अब वो खामोशी के साथ जो सफ़े हैं उनमें से गुजरती हुई यीशु के पास आ रही है, उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मेरे जीजो, ये बात नहीं थी कि यीशु कहीं अकेला बैठा हुआ था कि वो उसके पास आ जाती और उसे कहती कि आए यीशु मुझे शिफा दे। नहीं, एक हजूम था, एक जबरदस्त अवाम का मजमा था और यीशु उनके दरमियान था। लोग उसके आगे थे, पीछे, और एक बहुत बड़ा गिरोह था जो उसको फॉलो कर रहा था। और वो खामोशी के साथ सर छुपाते हुए, अपने चेहरे को छुपाते हुए आगे बढ़ती है और जाकर यीशु की पोशाक को छूती है और डर जाती है कि अब क्या होगा। और जब वो ये सोच रही है तो आवाज आती है कि किसने मेरी पोशाक छू। अब घबरा गई है और लिखा है कलाम में, जहां पर मरकज की अंजील में, तो यीशु ने फिर अपने में मालूम करके मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में से पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई। उसके अंदर जो कुव्वत है, उसके अंदर जो फोर्स है, उसको इस औरत ने रिस्पॉन्स किया। ये सारी खलके जो उसके पीछे चल रही थी, उन्होंने उसको रिस्पॉन्स किया। और फिर जब वो आगे आकर अपना सारा माजरा बयान करती है तो खुदावंद ने कहा, उसने उसे कहा कि बेटी तेरे मान से तुझे शफा मिली, सलामत जा और अपनी बीमारी से बची है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी बदनी बीमारी में मुब्तला हैं या कोई और ऐसी बात है, लोग आपको पसंद नहीं करते, आपके कदो कामत की वजह से, आपके इल्म की वजह से, आपकी जो समाजी हैसियत है उसकी वजह से, इस औरत के साथ भी ऐसे हुआ। उसका जो ताल्लुक था वो बंद कर दिया गया, वो हैकल में नहीं जा सकती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु में से जो कुव्वत निकलती है वो आपकी जिंदगी को बदल देगी, जिस तरह उसने इस औरत की जिंदगी को बदल दिया। मत घबराएं कि लोग क्या कहेंगे, मत घबराएं कि आपका हस्बैंड क्या कहता है, आपकी बीवी क्या कहती है, बहन भाई क्या कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका खामद चर्च नहीं आता, आप चर्च आए, उसके लिए दुआ करें। आप देखेंगे किस तरह पाकरू उसकी जिंदगी को बदलता है। मैंने अपनी आंखों से ये देखा है कि फिर वही हस्बैंड बच्चों को कहता है हम चर्च से लेट हो रहे हैं, लेट्स गो टू चर्च। बहुत सारे ऐसे खामद हैं जो चर्च आना चाहते हैं लेकिन बीवी चर्च नहीं जाती। आप अपने बच्चों को लेकर चर्च में आए और दुआ करें, तो आप देखेंगे कि किस तरह खुदा आपके जीवन साथी की जिंदगी बदलता है। अपने बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए यीशु में जो कुव्वत है उसको रिस्पॉन्स करें। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जो उसको रिस्पॉन्स करता है इस मैग्नेट के और कीलों के इस प्रेजेंटेशन की तरह, वो उसके साथ यूं जुड़ जाते हैं। हम ने इस औरत के बारे में देखा कि किस तरह इसकी जिंदगी बदली और उसकी वजह क्या थी। उसकी वजह यह थी कि वो यीशु की जो कुव्वत है, यीशु में से जो पावर निकलती है, उसको उसने रिस्पॉन्स किया मेरे से, और उसने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, यकीनन उस औरत ने जाकर बताया होगा, क्योंकि उसको बताना जरूरी था, काहिन को दिखाना जरूरी था, ताकि उसे डिक्लेयर किया जाए कि शी इज ओके टू कम बैक टू चर्च, और वो मिडल अप हो सकती है सोसाइटी में, और वो यीशु की दुआ बनी। क्या आप जब शेयर करते हैं टेस्टिमनीज कलाम मुकद्दस को, तो क्या आप साथ गवाही भी देते हैं? जरूर दीजिएगा। और इस औरत की इस टेस्टिमनी और इसकी शिफात से और जो फॉलोअर हैं वो बढ़ते गए। यीशु का फेसबुक जो है वो भर चुका है, लोग उसके पास आ रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। Oh, give praise to Jesus Christ in his house.
तालियां बजा कर यीशु को तारीफ उसकी करें, उसकी तमजीद करें, क्योंकि खुदावंद जो है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। उसका पाक रूह हमारा ईमान है कि यहाँ मौजूद है। हालेलुया। मैंने अभी आपसे बात की है फॉलो और शेयर की। एक और बटन है वहां पर, जो बच्चे खुसूसन और बड़े भी हमें चंद सिर्फ बटन्स का पता है जो हमारे लिए जरूरी होते हैं। एक और बटन है वहां पे। फॉलो का ऑपोजिट क्या है? अनफॉलो। आप अनफॉलो कर देते हैं किसी को। आपको पता है कि ये जो फॉलोअर थे उनमें से एक दिन सबने यीशु को अनफॉलो कर दिया था। यू नो व्हेन? पाम संडे के दिन जब इन्होंने यीशु को वेलकम कहा और जब उनकी मर्जी के मुताबिक नताइज ना निकले तो उन्होंने अनफॉलो का बटन दबा दिया। और सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि शागिर्दों ने भी, क्योंकि सब उसे छोड़कर चले गए थे। क्या आपने अनफॉलो का बटन तो नहीं दबाया? और फिर क्या होता है? फिर हम देखते हैं कि दोबारा वो फॉलो का बटन दबाते हैं और वो जो फोर्स और कुव्वत है उसको फिर वो रिस्पॉन्स करते हैं। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि जब यीशु को सलीब दी गई मेरे अजीजों, तो वो दिल बर्दाश्त था, उन्होंने अनफॉलो कर दिया, खामोशी से चले गए, कोई गौर नहीं किया कि उसके बाद क्या होगा। नहीं, जब समनी से वो सारे शरीर भागे तो यूहन्ना के बारे में पता चलता है, तो कलाम मुकद्दस में बिल्कुल नहीं पता चलता उस वक्त तक जब यीशु जिंदा होते हैं और वो जो औरतें कब्र पर आती हैं और वो बड़े खुश हुए, एक्साइटेड, क्योंकि आज अगर 2.2 बिलियन मसीही हैं 2010 के मुताबिक और 2020 के मुताबिक और 50 तक ये तादाद और बढ़ेगी। लिहाजा अगर कोई आपको ये कहता है कि मसीहियों की तादाद कम हो रही है तो उसका यकीन ना करें। रिस्पॉन्स टू दैट फोर्स दैट कॉल्स जीसस क्राइस्ट। पूरी दुनिया में आज इतनी तादाद में लोग पता क्यों फॉलो करते हैं? सिर्फ एक वजह से, सिर्फ एक वाक्य की वजह से कि यीशु फिर हकीकत मुर्दों में से जी उठा और उनके अंदर जिंदगी की लहर होगी। वो खुश हुए और उस दिन से आज तक लोग यीशु को फॉलो करते हैं, क्लिक करते हैं फॉलो का बटन पे उसको। उन्होंने अनक्लिक क्यों किया, अनफॉलो क्यों किया? क्योंकि वो दास परेशान हो गए। कभी कभी हम इस जिंदगी में मेरे सीसो दुआएं करते हैं और दुआओं का जवाब नहीं आता। किसी का बच्चा बीमार है, कितनी देर से दुआ हो रही है, दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, बच्चा सेहत नहीं पाता और इंसान परेशान होकर चढ़ जाना छोड़ देते हैं, कलाम पढ़ना छोड़ देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं। इतनी देर से दुआ कर रहे हैं और अनफॉलो का बटन पे दबा देते हैं। बहुत दफा और की वजह हो सकती है, आपके फाइनेंस की वजह हो सकती है, दोस्तों के साथ ताल्लुकदारी की वजह हो सकती है। मेरे दोस्तों, जॉब के लिए मैं बड़ी देर से दुआ कर रहा हूं, कितनी देर हो गई है मुझे जॉब नहीं मिल रही, और दिल बर्दाश्त होकर लोग चर्चा छोड़ देते हैं, कलाम पढ़ना छोड़ देते हैं, अनफॉलो का बटन दबा देते हैं। मेरे दोस्तों, हमें हमेशा यीशु को फॉलो करना चाहिए। उसकी जो कुव्वत है, उस में से जो फोर्स निकलती है, उसको हम हमेशा फॉलो करें और उसकी तरफ खींचे रहें। कलाम मुकद्दस में अभी हमने जो यूहन्ना की किताब में से जो पढ़ा, मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूं। यूहन्ना की इंजील में अभी हमने पढ़ा है कि खुदावंद ने कहा कि अगर मैं जमीन पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं, ये लिटरली दो तरह है। किस तरह? एक तो लिटरली यीशु जमीन से ऊपर सलीब पर खींचे गए, और दूसरा ये तो लिटरली है, दूसरा एग्जॉल्ट करना, उसको जलाल दिया गया। उसके रैंक में आगे बढ़ना जो है डिक्शनरी में, इसका मतलब ये है, और यहां पर इसका मतलब ये है क्योंकि उसने अपनी जान देकर हमें बचाया है, और उसकी इस कुर्बानी को बाप ने पसंद किया और वो किबरिया के दाहिने हाथ बैठा। खींचे जाने का मतलब ये है। अब जब यीशु वहां पर खींचा सलीब पर है, तो जो भी सलीब की तरफ देखता है और ईमानदार है, वो इन कीलों की तरह, जिस तरह ये मैग्नेट के साथ चिपके हुए, इस तरह यीशु के साथ जुड़ जाते हैं। सलीब जो है ईमान लाने वालों के लिए तो निजात है,
اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے لعنتی موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ جو مٹی یا ملچ ہے جس کو میں نے آپ کو دکھایا بھی, اس میں سے جو کیل تھے وہ میگنیٹ کی طرف کھینچے گئے. میرے عزیزو, یہ جو زندہ کلام ہے اور یسوع کی جو صلیب ہے اس کی طرف جو ایماندار ہے وہ کھینچے چلے جاتے ہیں. اور دنیا جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. یہ کیل جب اس کے اندر تھے تو یہ جو ساری کالی سیاہ ملچ ہے آپ ان کو نہیں پہچان سکتے جب تک کہ میں نے میگنیٹ نہیں لگایا اور وہ جہاں جہاں تھے وہ اس فورس کی طرف کھینچے گئے. اسی طرح یسوع جو ہے وہ اپنے اندر یہ فورس رکھتا ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسرے انسانوں کی طرح ہیں, ہماری شکل, کام کاج, بچے سب, لیکن اندر سے ہم ایک ایسی فورس کی طرف کھینچتے ہیں جو یسوع کہلاتی ہے. اس صلیب کی طرف ہم کھینچے جاتے ہیں جس پر میرا اور آپ کا خداوند جو ہے وہ مسلم. یہ صلیب ہے جو 2000 سال سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی قوت رکھتی ہے. میرے عزیزو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع کی جو صلیب ہے بہت سارے لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کس طرح لوگوں کا وہ جو تعلق ہے اس کے ساتھ توڑا جائے. مختلف طرح کی اسٹڈی اور فیک ایویڈنس لے کے آتے ہیں, بٹ جس طرح یہ میگنیٹ ریل ہے, that's how Jesus is real. اور ہمیں اسی فورس کو جواب دینا ہے. آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب میں اور آپ خداوند میں جڑ جاتے ہیں, اس کی فورس اور پاور میں آ جاتے ہیں, اس کے ساتھ جس طرح یہ میگنیٹ جڑا ہوا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابھی فلپیوں کے خط میں آپ نے پڑھا کہ پولس رسول کلیسیا کو کیا کہتا ہے. جس طرح یہ جو کیل ہیں یہ اس میگنیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ ایک ہی دھات کا ٹکڑا ہے جس کے ساتھ یہ کتنے سارے جڑے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح میرے عزیزو, جب میں اور آپ یسوع کی جو فورس ہے اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں, اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہو جاتا ہے, تو پھر ضرور ہے کہ جس طرح یہ ایک ہی سورس سب کو کھینچتا ہے, اس طرح یسوع ایک ہی سورس ہے جو سب ایمانداروں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو پھر تفرقے کیوں ہیں؟ پھر انڈرسٹینڈنگ کیوں ڈیفرنٹ ہے؟ پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق داری ہے اس میں فرق کیوں ہے, جبکہ ہم سب ایک ہی جو منبع ہے, ایک ہی جو فورس ہے, ایک ہی جو قوت ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے. پالوس رسول یہ لکھتا ہے کہ تم تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو. پھر کلیسیا جو ہے انٹرنیشنل کلیسیا وہ یک دل نہیں, کیوں نہیں ہے جبکہ ہم ایک ہی فورس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے خیال بھی ایک ہونے چاہیے. ہمارے خیال 2 کیوں ہیں, 3, 4 کیوں ہیں, جبکہ ہم ایک ہی فورس کی طرف کھینچے ہیں اور وہ یسوع. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ فروتنی کے ساتھ اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھیں اور صرف اپنے ہی حوال پر نہیں دوسروں کے حوال پر بھی غور کریں. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں. کبھی دوسروں کے بارے میں سوچے, پتہ نہیں وہ کس طرح کی سچویشن میں سے گزر رہے ہیں. اس میگنیٹ کی طرح ہماری جو فورس اور طاقت ہے میرے عزیزو وہ خداوند یسوع مسیح اور اس کی صلیب. جس طرح اس مٹی کو بالکل نہیں پتا, بالکل اسی طرح ایماندار جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہوا ہے. کیا میں اور آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آر وی فالوئنگ جیسس؟ اور اگر کسی بھی وقت زندگی میں کہیں بھی انفالو کا بٹن دبایا ہے تو آج اس کو جو فالو کا بٹن اسے دبا کے رکھے اور انٹرفیئر, باقی سارے بٹن جو انیکٹیو کر دیں. I'm telling you, میں پرسنل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں بھی اسی طرح دنیا کی جو باتیں ان سے بات پریشان رہتا تھا, لیکن جب سے میں نے یسوع کو فالو کیا اور باقی سارے بٹن جو تھے ان کو انیکٹیو کر دیا, تب سے مجھے کوئی فکر نہیں, کیونکہ جس فورس کے ساتھ میں جڑا ہوں ہی ول ٹیک کیئر. آمین. کاش خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشے کہ ہم صرف 2 بٹن جو ہیں ان کو دبائیں. 1, میرے ساتھ بولیں, فالو جیسس. One more time, follow Jesus. اور دوسرا بٹن ہمیں دبانا ہے, شیئر جیسس.
we must share. کیونکہ یہ حکم ہے جو اس نے دیا آسمان پر جانے سے پہلے، اور یہ دو ہی ہمارے لیے کافی ہے. جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، we are fulfilling the command. کاش خداوند مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اس فورس کے ساتھ جڑے رہیں جو یسوع کہلاتے ہیں. آمین. Amen. یہ وقت ہے کہ ہم خداوند کے میز پر آئیں اور ہم مل کر جو